Okay. So let's start now. So now we know relative risk. We know expected return, we know risk, and we know relative risk. और ये तीनों चीजें वो हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है? Expected return is the same as mean. arithmetic mean. Risk is the same as standard deviation. Relative risk is the same as coefficient of variation. ठीक है? तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी. अब हम लोगों ने जब ये काम कर रहे थे हमने कहा था कि ये discrete distribution थी. Do you remember what is a discrete distribution? Yes, sir. Discrete distribution. Exact value for 1, 2, 3. Exact value, which means it has jumps in between or gaps in between. Whereas a continuous distribution, जिसमें सर points में हर एक points में जिसमें ठीक है. अच्छा. अब जो अब तक हमने पढ़ा वो discrete distribution के लिए था. अब अगर continuous distribution के लिए देखें, so your expected return is equal to summation r divided by n, which means the number of values. Summation r divided by n. अब अगर summation r divided by n आपके पास expected return है, तो इसका मतलब अगर ये डेटा हुआ, ठीक, so this is a continuous distribution, और आपने इसके लिए find out करना हुआ तो आप कैसे find out करेंगे? The formula is summation r divided by n. Expected return is summation r divided by n. ये आपके पास different returns है, ठीक है? आपने क्या करना है? इस सब को simply add कर देना है. करें add करें. The first one is 9.6. So this is equal to 0.096. ठीक है? 0.096. अगला जो है वो माइनस में है, तो आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे. -0.154. चलिए जी आगे चलें. प्लस 0.267. नेक्स्ट इज माइनस. सो आप माइनस लिखेंगे और ये है 0.2%. 0.2% इज इक्वल टू 0.002. ओके. देन प्लस 0.209 प्लस 0.283, फिर माइनस आ गया, माइनस 0.059, सही, प्लस 0.033 प्लस 0.122 प्लस 0.105. ये आपके पास आ जाएगा समेशन r which is equal to summation r which is equal to G class summation r G class summation r क्या आ रहा है? 0.9 divided by n. n कितना है? n. So this is equal to 0.09. Yes, sir. Which is equal to 9%. 9%. सही हो गया? Yes. Clear? Yes. Clear class? Yes, sir. This is for a continuous distribution. सही है? Okay. So now let's move on to standard deviation of a continuous distribution. Now this is the standard deviation of a continuous distribution. Instead of going for summation r minus r bar and then multiplying it with the probability, we have summation r minus r bar and then you need to divide it square करके you need to divide it by the number of values and then square it. ठीक है? summation r minus r bar square, ठीक, फिर उसको n पे डिवाइड करके स्क्वायर रूट. समझ आ रही है? पहले r माइनस r बार करना है आपने, ठीक, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर उस सब को सम करना है, फिर डिवाइड बाय n करना है, फाइनली अंडर द रूट. दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन और रिस्क ऑफ अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है? क्लियर है? इसको करें क्लास, इसको करें. ओके जी. सो नाउ वी हैव 9% of 0.09 as the r bar expected mean. अब पहली वैल्यू है 9.6% which is 0.096. So 0.096 minus 0.09. 0.096 minus 0.09 और इसका कर दें स्क्वायर.
अच्छा, और इसको कर दें सेव अपने कैलकुलेटर की मेमोरी के अंदर। आप लोग तो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं सारे, इसके अंदर तो मेमोरी शायद नहीं होती। लिख दें। ओके, द फर्स्ट वैल्यू इज, मुझे बता देना क्या जी, 0.000040 जी, this is the first value. Now the next value is minus 15.4%. So 0.09 minus G class pay attention. अच्छा जी, so next one is 15.4%. So minus 0.154 और फिर minus 0.09 माइनस 0.244, इसको करते हैं स्क्वायर 0.059536. Is this the one? Yes, sir. Okay, next 26.7% है, so Ri minus R bar 0.267 minus 0.09, इसको स्क्वायर कर दें 0.0313 0.03132 31329 ठीक, ये भी हो गया। नेक्स्ट वन इज 0.2% माइनस, सो आप लिखेंगे 0.002, ठीक है, इसके साथ माइनस लगाना है पहले, माइनस 0.002 और फिर माइनस 0.09 0.008464 स्क्वायर इट, वो कर लिया कर लिया। क्या रहा आंसर? 0.008464 8464। ओके जी, नेक्स्ट वन इज 20.9%, सो 0.209 माइनस 0.09, इसका फाइनल आंसर है 0.014 स्क्वायर कर दिया है जी, 0.014 161 okay, next one is 28.3%, so 0.283 minus 0.09 0.0372 0.0372 49 okay जी, next is 5.9% minus, so minus 0.059 minus 0.09 0.02201 स्क्वायर कर दिए yes sir जी, 0.02201 22201 okay, 3.3%, so this will be 0.033 minus 0.09 0.003249. Next one is 12.2%, so 0.122 minus 0.09 0.122 minus 0.09 0.001024 स्क्वायर कर दिए yes sir 0.001024 0.01024. Now the last one is 10.5%, so 0.105 minus 0.09 और इसका स्क्वायर 0.0000225. Now sum all of these figures. 10 figures हैं, इन सबको सम करें। जी क्लास हो गया सब? जी
0.00 .177474 .1774774 ये समीशन हो गया इसका. इसको डिवाइड बाय n. हाउ मेनी वैल्यूज डू यू हैव? 10. 0.01 हो जाए. ठीक, इसको कर दें अंडर द रूट. जी 0.133 2193 which is equal to 13.32% of risk. सही है? सही है क्लास? Okay, this is the last topic of the day now. Certainty equivalent. ठीक है? Last topic of the day. सबके बराबर जाना है, बाकी दो sections. Yes sir. Okay. ठीक है सर. So last topic of the day. आपसे मैंने कहा था कि different risk attitudes होते हैं. कोई बंदा ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, कोई नहीं लेना चाहता. So there are three different types of attitudes towards risk. One is risk preference. So they prefer risk. ठीक है? Then there are those who are risk indifference. वो ये कहते हैं कि मतलब अगर ये मैं रिस्क लूं या मुझे कोई और रिस्क बगैर रिस्क की इन्वेस्टमेंट हो तो दोनों मेरे लिए सेम रिस्क इंडिफरेंट होता है. थर्ड वन इज रिस्क अवर्जन. वो लोग जो रिस्क अवर्स होते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते. और मोस्ट इंडिविजुअल्स आर रिस्क अवर्स. क्लियर हो गया? अब ये है क्या? ये रिस्क प्रेफरेंस कौन से लोग हैं, रिस्क अवर्स कौन से लोग हैं और रिस्क इंडिफरेंट कौन से लोग हैं? इसको समझने के लिए you need to understand a concept which is called as certainty equivalent. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है certainty equivalent का, आपको वो आना चाहिए. ये certainty equivalent क्या है और से सुनिए. certainty equivalent क्या है और से सुनिए. So certainty equivalent is the amount of cash. Is that amount of cash which someone would accept or would require with certainty. यानी ये वो पैसे हैं जो आपको मिल रहे हो with certainty. इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई शक नहीं है, ये जरूर आपको मिल रहे हैं. वो पैसे जो आपको जरूर मिल रहे हैं and at a point in time, किसी भी वक्त पे with certainty at a point in time to make the individual indifference. यानी वो बराबर हो जाए उस चीज के between that certain amount. वो जो certain amount अभी हमने कहा कि आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं जो बिल्कुल कंफर्म मिल रहे हैं, बगैर किसी रिस्क के मिल रहे हैं, वो पैसे किसी भी वक्त अगर बराबर हो जाए उसके with that certain amount and an amount expected to be received with risk at the same point in time. यानी अगर एक जगह पर आपको रिस्क के साथ कुछ पैसे मिल रहे हैं, कुछ रिस्क है बीच में, कोई इन्वेस्टमेंट है उसमें रिस्क है, उसके साथ आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं, और एक उसी वक्त आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं विद सर्टेनिटी. अगर आप इन दोनों के दरमियान इनडिफरेंट हो जाएं, यानी आपके लिए ये दोनों चीजें बराबर हो जाएं, तो उस वक्त उसको हम लोग बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट. सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वो पैसे हैं जो आपको मिले बगैर किसी रिस्क के, सर्टेन आपको मिले और उसी वक्त आप इनडिफरेंट हो जाएं उन पैसों के दरमियान और उन पैसों के दरमियान जो रिस्क के साथ आपको मिल रहे हैं. इसको बोलते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट. जी क्लास क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुई? इसकी कोई वो है प्रैक्टिकल एग्जांपल? अभी बता रहा हूं. पहले इसको क्लियर करें डेफिनेशन को, तो आगे जाओ आगे. यस सर. अच्छा, अब जरा गौर से देखिए. हमने कहा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वो पैसे हैं जो आपको मिल रहे हैं सर्टेनिटी के साथ, और आप उसके दरमियान और उन पैसों के दरमियान जो कि किसी रिस्क के साथ मिल रहे हैं. ठीक है? उन दोनों के दरमियान आप इनडिफरेंट हो जाए, कि मतलब ये दोनों चीजें बराबर हैं आपकी. ओके? अब अगर आप रिस्क को प्रेफर करते हैं, इफ यू आर अ रिस्क प्रेफरेंस, तो वो पैसे जो कि आपको मैं दे रहा हूं बगैर रिस्क के,
कि कंफर्म ये पैसे, तो वो पैसे अगर आपके जो रिस्क वाले पैसे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैम्बल, यानी मैं किसी जगह पे इन्वेस्ट करता हूं और वहां पे एक्सपेक्टेड वैल्यूज की फाइंड आउट करता हूं कि कितना एक्सपेक्टेड है कि पैसे आ जाएंगे। अब उसमें रिस्क होता है कि इतना % चांस है कि मिलेंगे, इतना % चांस है कि नहीं मिलेंगे, उसके मुताबिक जो पैसे हैं, और ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट उन पैसों से ज्यादा हो जाए, सो दिस इज कॉल्ड एज रिस्क प्रेफरेंस। When your certainty equivalent is more than expected value of the gamble, this is called as risk preference. जहां पर ये दोनों पैसे बराबर हो जाएं वहां पे it is called as risk indifferent। जहां पे वो पैसे जो आपको कंफर्म मिल रहे हैं और वो पैसे जो आपको मिल रहे हैं किसी गैम्बल में, किसी रिस्क में, रिस्क की सिचुएशन में, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है, वो दोनों अगर बराबर हैं, सो इट इज कॉल्ड एज रिस्क इंडिफरेंस। और अगर आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कम हो जाए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैम्बल से, सो दैट इज कॉल्ड एज रिस्क अवर्शन। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? यस नहीं क्लियर? इसको करते हैं, अब क्लियर हो, ठीक है? अब इसको देखते हैं दोबारा, इसी को दोबारा। यू हैव द चॉइस बिटवीन अ गारंटीड डॉलर रिवॉर्ड, आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं गारंटीड, कंफर्म, ठीक, और अ कॉइन फ्लिप गैम्बल। कॉइन फ्लिप गैम्बल में क्या होता है? या तो हेड आएगी या हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आएगा, लेट्स से आप जीत गए, टेल आया आप हार गए। अगर हेड आया तो सारे के सारे पैसे आपके, टेल आ गया तो आपको जीरो, कुछ भी नहीं मिलेगा। हेड का कितना चांस है, टेल का कितना चांस है? 50। अ कॉइन फ्लिप गैम्बल ऑफ 100,000, लाख रुपए का गैम्बल है। अगर आप जीत गए तो लाख रुपए, 50% चांस है कि आपको लाख रुपए मिल जाएंगे। हेड टेल ना, दोनों का चांस 50-50 है। अगर हेड आ गया 50% चांस तो आपको मिलेंगे 100,000, लेकिन अगर टेल आ गया, टेल का भी चांस कितना है? 50%, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे? जीरो, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि इस गैम्बल का एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी, इस गैम्बल की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी? एक जगह पे आपको मिल रहा है लाख रुपए विद 50% चांस, सो लाख रुपए इंटू 50% चांस इज 50,000। एक जगह पे आपको मिल रहा है जीरो विद 50% चांस, सो जीरो इंटू 50% कितना हो गया? जीरो, सो 50,000 प्लस जीरो कितना हो गया? 50,000। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैम्बल इज हाउ मच? 50,000। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैम्बल इज 50,000, ठीक है। उसके रिस्क को दिमाग में रखते हुए कि 50% चांस है कि मिलेगा, 50% चांस है कि नहीं मिलेगा, तो हम लोगों ने उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड आउट करी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू है 50,000 रुपए, ठीक। अब अगर आपको एक मिल रहा है गारंटीड पैसे, एक ये गैम्बल है, इस गैम्बल की एक्सपेक्टेड वैल्यू अभी आपने कितनी कैलकुलेट की? 50,000। और एक और जगह पे मैं आपसे कह रहा हूं कि कंफर्म पैसे ये ले ले मुझसे, ठीक। तीन डिफरेंट किस्म के लोग हैं, तीन डिफरेंट किस्म के लोग हैं, हमने थोड़ी देर पहले कहा कि तीन डिफरेंट किस्म के लोग। इसमें एक है जो कि कहता है कि मुझे अगर गारंटीड कंफर्म 25,000 रुपए दे दो, 25,000, तो मैं ये गैम्बल छोड़ने को तैयार हूं। ये क्या है? रिस्क अवर्स है। क्यों? क्योंकि इसका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज लेस देन दी एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसको बोलते हैं रिस्क अवर्स। अच्छा जी, अब आगे आ जाए। एक और है, वो कहता है कि अगर मुझे 50,000 रुपए दे दो, 50,000, तो मैं ये गैम्बल छोड़ने को तैयार हूं। रिस्क इंडिफरेंस। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैम्बल भी 50 है और ये जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मांग रहा है कंफर्म पैसे, वो भी 50,000 है, तो दोनों सेम है। सो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, सो दिस इज रिस्क इंडिफरेंट। थर्ड, शैनन रिक्वायर्स एटलीस्ट 52,000। अब एक और बंदा वो कह रहा है कि अगर मुझे 52,000 दोगे तो फिर ये गैम्बल छोड़ूंगा, नहीं तो ये गैम्बल नहीं छोड़ूंगा। तो इसका मतलब ये है कि वो रिस्क लेना चाहता है, ठीक है, रिस्क प्रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि उसका जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द गैम्बल से ज्यादा है। ऐसे लोग ये सोच रहे हैं कि हेड आएगा और मैं जीत जाऊंगा तो मैं लाख रुपए जीत सकता हूँ, तो वो 50,000 पे नहीं मानता, वो कहता है मुझे 50,000 से ज्यादा दोगे।
60,000 70,000, यहाँ पे उसने 52,000 कह दिया है, ठीक है। सो यू गॉट द आइडिया, सो यू गॉट द आइडिया ऑफ 3 रिस्क एटीट्यूड्स। तीनों रिस्क एटीट्यूड्स क्लियर हो गए, रिस्क अवर्स, रिस्क प्रेफरेंस, रिस्क इंडिफरेंट, क्लियर क्लास। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास।